Assalamu alaikum ji, this is Ehsan Sheikh. I welcome you all to the 31st episode of Facebook Live Sessions. I hope you all must be fine, you all are doing well, and a very good evening to all of you. Uh, Today, the session that we are going to have is about the fact that we have pretty much discussed about entrepreneurship in our previous sessions. But what we have realized, what I have personally realized, is that the more you discuss it, the more we have got to know that still there is something that is required to be discussed more. Why? Because it's a very huge concept when it comes to entrepreneurship. That is why we've been doing our sessions on it, and I think one session or two session is not enough for it. So in order to discuss that, we have a very dynamic personality, and that is Mr. Danish Jablani with us today, and we are really lucky enough to have him. He is an entrepreneur, and he's running his digital agency, and which is basically based in Dubai, and uh, definitely it's providing the agency is providing its consultancy to the clients. So we would definitely know about it. We would ask him that what is it about. He's the founder of Belta Labs in Dubai, and he has been doing his vlogging too. He makes different kind of videos, and I'm sure you might have watched them, and if you haven't watched, you should go to his page. You should go and you should check out those videos, because I've personally seen, and I would like to talk to Mr. Danish about those videos too, because some of the videos were quite interesting, and I would like to speak on them. So Danish sir, welcome on the board, sir. It's really good to have you. Thank you very much, and it's a pleasure of mine to be with you and with all the audience right now. Right. Dani Saab, how do you see this whole concept when it comes to entrepreneurship and being an entrepreneur, being a businessman? It's like I believe it's a very big task. It's a very challenging task for most of the people, because I am also among those normal people. So that is why I'm Yeah, asking you this question. Actually, we had many sessions in which we discussed about it, but still there is a confusion. Still people are not risk takers. Still people are thinking, or they have this kind of a thing at the corner of the mind that no, it's so difficult, it is very easy to have a job and work on. But so this all yeah. is creating a dichotomy in the mind that what to select, what not to. So we would like to know your experiences and your failure and your success. So it's binary for me. It has always been binary. जैसे binary में zero और one होता है, yes और no होता है, वैसे ही जिंदगी में आपने entrepreneur बनना है या job करनी है या कोई भी profession choose करना है तो वो binary होता है. The reason why I say binary is because nobody can answer this for you. The question that you asked me, that if entrepreneurship is difficult or not, if one should choose to become an entrepreneur or not, nobody can answer it for you but yourself. While growing up, you always know what you want. Sometimes the purpose is money, sometimes it's inspiration from your parents, sometimes some cousin, आपके खाला के बेटे ने किया था, आपके चाचा के बेटे ने किया था, तो आपको भी करना है, और या तो आपने टीवी पे किसी को देखा है. तो इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन ये मैटर करता है कि आप उसमें कितना खुश हैं. प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम खुशी को छोड़ के जो है वो दूसरे रीजंस की वजह से चॉइसेस लेना शुरू करते हैं. जी. एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इसलिए अब बात हो रही है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप अब ट्रेंड में है. एंटरप्रेन्योरशिप अब कूल है. एंटरप्रेन्योरशिप इज द थिंग नाउ. अगर आप बैक चले जाएं, थोड़ा और 80s में चले जाएं, तो 80s में द सेम थिंग वुड बीन अ गवर्नमेंट जॉब. गवर्नमेंट जॉब करना जो है वो एक बड़ी चीज समझी जाती थी, एक बड़ी एजाज वाली चीज समझी जाती थी. थोड़ा और पीछे चले जाएं तो देन हैविंग मनी एंड हैविंग लग्जरीज इन लाइफ जो है वो थोड़ा, तो हर टाइम में इसका ट्रेंड आता है और लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं. जी. लेकिन जरूरी नहीं है कि सब ट्रेंड जो फॉलो करें वो उस ट्रेंड को निभा भी सकें. उसका रीजन ये है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताऊं. एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ प्रोफेशन. सबसे बड़ी तो मिथ ये है कि उसको आप ये समझना छोड़ दें कि वो एक प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर है या इंजीनियर है. एंटरप्रेन्योरशिप इज अ लाइफस्टाइल. वो जिंदगी गुजारने का एक तरीका है. वो तरीका ये है कि मैं अपने अलावा और किसी के लिए काम नहीं करूंगा. द रीजन that I want to work for myself is because I want to work for my own happiness on something that I believe in. मैं अपनी स्टोरी लूं तो आई स्टार्टेड माय करियर ऑलमोस्ट 10 years ago, more than 10 years ago now. एंड कॉर्पोरेट जॉब में 4 साल लगाने के बाद तकरीबन 5वें साल में आई जस्ट लॉस्ट इट. मतलब मैंने एक बहुत अच्छी बड़ी कंपनी में एक अच्छी जॉब अक्वायर कर ली थी. मैं मतलब I was living the dream of a web developer, a computer science graduate, and I was with a very big name of Pakistan at that time, not anymore. So, and they were paying me well. Everything was great, but there were problems, unethical behavior, late sittings, bad behavior, and I was like, यार मैं मेरी कंपनी होती तो मैं ऐसे कभी भी नहीं करता. और
जो है डिफरेंट किस्म के बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी को जो है जेब नहीं देता। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, और मतलब मेरे लिए इसलिए भी मैटर करता है क्योंकि मेरे लिए हलाल हराम का कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता था। So it just struck my belief system, and I said, why should I work for someone else who does not believe when I have values that are not matching with them? और मैंने वो जॉब छोड़ी, और जॉब छोड़ के मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी, एंड दैट led me to getting more local clients and getting more clients abroad, and then finally launching my company in 2015 in Dubai. So Right. it was always about, for me, it was always about what I believe in. So the mistake that we make, that is the reason why you're asking that question कि entrepreneurship क्यों इतना confusing decision है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, because the reason we're trying to make is based upon money. जिस दिन आप पैसे को रीजन बनाए बगैर फैसला करना शुरू कर देंगे, उस दिन ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जिस दिन आपको डिसाइड हो गया कि मैंने ये करना है, ये मुझे खुशी देता है और इसको करने में मजा आता है, तो पैसा, कामयाबी, फेम सब एक साथ आएगा आहिस्ता आहिस्ता अपने टाइम से, जो हम डिस्कस भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन जो है क्या कहते हैं, हो सकता है वो लोगों की वैल्यूज, लोगों के ट्रेंड, मार्केट के ट्रेंड से मैच ना करता हो, लेकिन वो बाकी सारी चीजें आपको आएगा। अब मुझसे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं स्कोप किस चीज का है, बिजनेस पढ़ना चाहिए, कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहिए, और ये मैं भी पूछता था जब मैं सेकंड ईयर में था, इंटर कर रहा था। स्कोप हर उस चीज का है जो आप अच्छी करना या शौक से करना जानते हैं। एक पेंटर भी पेंटिंग से अच्छा कमाता है जब उसकी पेंटिंग्स अच्छी होती हैं। एक Very true. डिजिटल आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा कमाता है। एक बिजनेसमैन बहुत अच्छा कमाता है जब उसका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, दिल होता है। जी. हम आजकल जो देखते हैं कि जो लोग लाखों रुपए भी कमा रहे हैं वो खुश नहीं है, वो इसी वजह से खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने वो जॉब, वो प्रोफेशन किसी के कहने पे, पैसे की वजह से या किसी और इन्फ्लुएंस में आके चूज किया है। उनका अपना टैलेंट, अपना पोटेंशियल वो नहीं है। और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ भी यही है। अगर आपका पोटेंशियल है, अगर आपको लगता है कि आप ये लाइफस्टाइल एक्वायर कर सकते हैं, जिस लाइफस्टाइल को भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, then only you should establish a company or go ahead and have your startup. Otherwise, you're better off working for anyone else. Just the whole point is live happy, live with what you want in life, because you only have one life. You're not coming back. ठीक है ना? you're आजकल तो मतलब इतनी जो है वो गहमा गहमी है कि कभी भी किसी भी वक्त कोई भी चीज रीजन बन सकती है। जी. तो you only have one life. आपके पास दूसरा मौका थोड़ी है जो आप इतना किसी और के कहने पे जी रहे हैं। तो बस यही मुझे समझ में आया उस वक्त 2012 में। आई वाज 24 years old hardly, and मुझे समझ में आया, मैंने यार I only have one life. I don't even know if I'll make it till 30 or not. I'm 31 now. So why am I living it for someone that I don't respect or I don't like? Acha, So Dani Sahab, I that would is, like to ask here one question that, for example, you yeah, just said that you started out, you had a very good job at a very huge company and you were happy over there. But obviously you saw yeah, something which was not good, which was not up to the mark. So you realized that this is what is not my domain. I really need to move on. I need to take some other yeah. decisions. So sir, didn't you have that kind of fear in your heart? Because, a lot of risk was involved over there. So Yeah. what would you like to say about that? But yeah, risk taking is also very important. Risk लेना भी बहुत जरूरी होता है. तो Exactly, exactly. क्या कहना And बिल्कुल ऐसा हुआ था, बहुत डर लग रहा था, बिकॉज आई एम द सोल ब्रेड विनर फॉर माई फैमिली। मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 20 ईयर्स का था। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल डिसीजन था क्योंकि मेरी सैलरी ही सब कुछ थी मेरे लिए उस वक्त। राइट. लेकिन मैं बड़ी अच्छी एक स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम बैठे हुए थे कॉफी हाउस में संडे के दिन, छुट्टी वाले अच्छा. दिन, और मैं कंप्लेन कर रहा था अपनी लाइफ को लेके ना। और मैं अच्छा. कंप्लेन पे कंप्लेन किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। अच्छा, इस जॉब पे जाने से पहले मैंने सब कुछ कर लिया था, मतलब मैंने गाड़ी भी खरीद ली थी, मैंने फॉरेन ट्रिप भी लगा लिया था, सब अपने पैसों से, फ्रीलांस के पैसों से और जॉब के पैसों से। तो मैं कंप्लेन करे जा रहा था, और एक दोस्त मेरे साथ जो बैठे थे, ही सेड टू मी दैट व्हाई आर यू कंप्लेनिंग सो मच, इफ यू डोंट लाइक दिस जॉब लीव इट। एंड that friend of mine does not have a job, he does not do a job, he's a freelancer full time. I said, have you gone crazy? How can I leave this job? Who will pay my bills? Who will pay the monthly? And he was like, all the foreign trips that you have made, the car that you have bought, मतलब मैं रानी थी उस वक्त एक छोटी सी, बट बड़ी बात थी मेरे लिए उस वक्त। The car that is parked outside, the camera that you own, the mobile phone that you have, did you buy it from your salary? Or did you buy it from the freelance money that you earn by yourself? Yeah. एंड दैट क्लिक्ड मी के वो इसलिए क्योंकि मैंने बिलीव किया हुआ था कि मैं फ्रीलांस से इतने पैसे कमा सकता हूँ। सो इट्स अ मैटर ऑफ बिलीफ। सेकंड थिंग इज, ये जो डर वाली कहानी आपने बताई, इसमें बहुत अच्छी एक बात कुरान पाक में है, एंड आई ऑलवेज गिव रेफरेंसेस फ्रॉम कुरान बिकॉज आई थिंक दानिश इट्स साहब, द बेस्ट। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है. आई एम रियली सॉरी. योर माइक इज ऑन. ओके, जी जी, कैन यू हियर मी नाउ? हेलो?
Is it on? Hello. Can you check it? It is on. All right, all right. Give me just 5 minutes. Okay. मैं अभी इसको देखता हूँ कि हो सकता है मेरी तरफ से कोई इशू हो. Just give me 2 minutes. Okay. Okay. I got a comment that they can hear me. जी मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ अपने साथ. Sorry for Okay. the. Okay. Okay. Yeah. No problem. Mm-hmm. So we are still live. Yeah, we are still live. Okay. So yeah, the reference that I give from Quran is there are three kinds of fear in one's life: the fear of death, fear of poverty, जिसका आपने जिक्र किया, and the fear of status, इज्जत का खो जाने का डर, ये मेरी सोसाइटी में. और the funny thing is कि इन तीनों आपके जितने भी डर होते हैं जिंदगी में वो इन तीन किस्मों में से किसी एक में होते हैं. All the fears that you have are either of these three types. Right. जिस टाइप की आपने बात की वो सेकंड टाइप है, रिस्क का डर, यानी दौलत चले जाने का डर या पैसे ना होने का डर. और Right. मजे की बात यह है कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि इन तीनों चीजों से डरने की जरूरत नहीं है कि ये तीनों चीजें मेरे कंट्रोल में. तो जिसने आपको बनाया है वो कह रहा है कि ये तीनों चीजें मेरे कंट्रोल में है और आप कह रहे हैं कि यार आपको डर नहीं लगा था. इट इज नेचुरल, डर लगता है आपको, लेकिन आपको फिर ये याद रखना पड़ता है कि यार रिस्क देने वाला तो अल्लाह ताला है. एंड बिल्कुल. आई टेल यू, मैंने फ्राइडे के दिन मेरा लास्ट डे था जॉब पे. सैटरडे संडे गुजरा था, एंड दैट सैटरडे संडे आई वाज विद फ्रेंड्स, आई वाज एंजॉयिंग माय वीकेंड. Monday go, I had a project on my table without even applying. An old client reached out to me and said, if you are available, I have a project for you. All right. On Monday. And within a week, I had done enough work which was equal to my monthly salary on the previous job. So within a Okay. week, within 1 week, I had the money in my account. And I was like, I was worried without, आपको खाली ये मैटर, आपको खाली इस बात की फिक्र करनी है कि आपके पास स्किल है, क्या आपको काम आता है, क्या आपने इनफ मेहनत की है, वो किसी को करनी नहीं है. दाने साहब ये बहुत जरूरी पॉइंट है. मैं बिल्कुल अग्री करूंगा इससे 100% कि आपने जो कहा ना कि यू हैव टू मेक श्योर कि आपको काम करना आता है या नहीं आता है. बहुत हाँ सारे ऐसे हाँ लोग मैंने देखे बिल्कुल हैं, दे आर ट्राइंग टू बी एंटरप्रेन्योर, दे वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड, बट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि दे डोंट नो द डायनामिक्स ऑफ द बिजनेस, दे डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू. वो एक बिल्कुल. ट्रेनिंग जो होती है ना वो बहुत जरूरी होती है. I made a similar mistake when I established my company in Dubai. The first year was a surprise. मुझे पहले साल में पता ही नहीं लगा कंपनी कहते किसको है. जाके दुबई अच्छा. में ऑफिस खोल लिया, कंपनी स्टैब्लिश कर ली, और मुझे लगा कि जी जिस तरह फ्रीलांस होता था या जिस तरह पाकिस्तान में क्लाइंट्स के साथ डील करते थे वैसे ही दुबई में भी करेंगे. बट दुबई इज एन इंटरनेशनल मार्केट, द गेम इज डिफरेंट ओवर देयर. तो मार्केटिंग कैसे होती है, और आई वॉज प्योरली फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड. सेल्स कैसे होती है, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होती हैं, वारंटीज कैसे दी जाती हैं, वारंटीज अवेल कैसे की जाती हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं एक बिजनेस के अंदर, और पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं आपको. तो आई वॉज नॉट अ बिल्कुल. पॉलिसी मेकर एट फर्स्ट. एक साल के बाद मुझे समझ में आया कि अब पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, एसओपीज बनाने पड़ेंगे, हर चीज की एक साइकिल होगी, तब जाके प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे. अगर ये फ्रीलांस बिहेवियर रहेगा तो मैं वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ही हर महीने जनरेट कर सकता हूँ, लाइक $2,000-3,000 का ही बिजनेस कर सकता हूँ, जो कि मैं एज ए फ्रीलांसर भी कर रहा था. एज ए कंपनी में कभी ग्रो नहीं कर सकता. तो वो प्रोसेसेस एक साल के बाद डेवलप हुए. और ये जो जिन 5 पिलर्स का मैं जिक्र करता हूँ, ये 5 पिलर्स भी मेरे उस जर्नी के बाद, जब मैंने दुबई ऑफिस क्लोज किया, तो उसके बाद आके मैं जब पहले दिन पाकिस्तान आके बैठा और मैंने सोचा कि ओके फाइन, दिस जर्नी हैज एंडेड इन दुबई, बट टू कंटिन्यू नेक्स्ट आई नीड टू नो व्हाट केप्ट मी गोइंग, ताकि मैं उसके ऊपर डबल डाउन करूं. उस जो क्वालिटीज थी जिसने मेरी हेल्प की उसको मैं डबल डाउन करूं. तो वो 5 सही. पिलर्स जिनको मैं थोड़ा जिस पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, और व्हेनेवर यू आर रेडी. तो प्लीज वो जो डिस्कस. है वो, या. या सो एंड these 5 pillars are complementing each other, यानी हर पिलर दूसरे पिलर को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है, सपोर्ट करता है. जैसे कि अगर पहला पिलर है तो वो बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड उससे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सेकंड पिलर के बगैर पहला पिलर कामयाब नहीं हो सकता. मैं राइट. पिलर इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब चीजें इन पांचों के ऊपर इक्वली खड़ी हुई है. एक दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, बट इन दिस वेरी ऑर्डर जिस तरह मैं बता रहा हूँ. So the first pillar of entrepreneurship and pillar of life, जिस पर पूरी जिंदगी खड़ी है, that is self realization, self राइट. awareness, जिसको काफी लोग कहते हैं. और उर्दू में अगर आप आसान अल्फाज में रहें तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने इसको बहुत खूबसूरत अल्फाज दिया है, वो है खुदी. खुदी का जो बिल्कुल. कॉन्सेप्ट है,
खुद को पहचानने का जो कॉन्सेप्ट है वो एक सफर का नाम है, वो सफर, वो जर्नी इज टू नो योर सेल्फ एंड दैट गोज ऑन टिल द एंड ऑफ योर लाइफ. The problem with us in our society, specifically in Pakistan, is that in our education system, in our family system, we have not allowed our youngsters, our young minds to let them know themselves. हम उनको True. स्कूल में ही बता देते हैं कि बेटा आपने ये करना है, आपने ये बनना है. उनको हम ये अलाउ ही नहीं करते कि आप खुद चूज करें किसी भी चीज में, चाहे उनका प्रोफेशन हो, चाहे उनकी शादी का मामला हो, चाहे उनके दोस्तों का मामला हो, चाहे कोई गाड़ी खरीदनी हो, कुछ भी हो. हम इन्फ्लुएंस करते हैं अपना ओपिनियन दूसरों के ऊपर. तो जब आप बिल्कुल अपने ऐसा है। आप को नहीं ढूंढ पाते, जब आप अपने आप को नहीं ढूंढ पाते, तो आप एक बहुत बड़ा गुनाह करते हैं. और वो गुनाह ये है कि आप डिसीजन लेते हैं दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके. एहसन बिल्कुल साहब ऐसा ने है। कहा कि जी ये वाला जो है वो वेंडर अच्छा है, तो इसी वेंडर से सामान लेना है. अब मैं खुद कभी भी ये एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा कि ये वेंडर अच्छा है या मेरे केस में कोई और वेंडर अच्छा था. इसी तरह प्रोफेशन का मामला है. क्योंकि मेरे भाई साहब डॉक्टर बने तो इसलिए मुझे भी डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे तो इसलिए मैं भी डॉक्टर बनूंगा. और यही चाहे मामला मेरा, बिजनेस में है, अगर वो ये काम कर रहे हैं तो मैंने भी ये काम करना है। बिल्कुल. वेरी ट्रू। अब आप देखें कि डिजिटल एजेंसीज कितनी ज्यादा खुल गई हैं. हर कहते हैं आजकल, कहते हैं हर गली के अंदर एक डिजिटल एजेंसी है. तो उसका रीजन यही है कि पीपल रियलाइज कि यार ये बाहर से बिजनेस आता है, डॉलर्स में कमाई होती है, सो लेट्स डू दिस. आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग का जमाना है. चाहे उसका पर्सनल टैलेंट पेंटिंग के अंदर हो या आर्ट्स के अंदर हो, उसने कहा डिजिटल एजेंसी खोलता हूं मैं. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. बट इफ यू डू नॉट लव इट, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे उसमें. उसको थक जब उसमें आप थक जाएंगे तो आप कंप्लेन करेंगे, और फिर कंप्लेन करने के बाद क्या आता है? मंडे ब्लूज. मंडे ब्लूज में क्या होता है जी? मंडे को आपका दिल नहीं करता ऑफिस जाने का. सैटरडे संडे के लिए आप जिंदगी गुजारते हैं. आप मैं दुबई में रहता था, मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो वीकेंड के इंतजार में पूरी पूरा पूरा वीक गुजारते थे कि जी वीकेंड आएगा अच्छा। तो ये करेंगे, वीकेंड आएगा तो ये करेंगे. जब फ्राइडे आता था तो पूरा दिन सोते थे, कहते थे कि जी पूरा वीक हमारी नींद नहीं पूरी हुई है. और फिर शाम को वो कहीं घूमने जाते थे, मूवी, मतलब वो बाकी वीक में कुछ नहीं कर सकते थे. अब आप सही। सोचें, आप अपनी जिंदगी के 40-50 साल सिर्फ वीकेंड्स के लिए गुजार दें, आपकी जिंदगी तो खत्म. हम्म। तो सेल्फ रियलाइजेशन कहती है कि आप खुद को पहचानें, आप पहचानें कि सही है। आपका गिफ्ट क्या है. और सबका गिफ्ट है. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है. तो अल्लामा इकबाल साहब उसमें यही बता रहे हैं कि जब आपकी सेल्फ रियलाइजेशन उस लेवल पे पहुंच जाएगी, तो अल्लाह ताला फिर आपको ये जो है वो इनायत कर देंगे कि अब तू खुद बता के तूने आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है. बिल्कुल। और ये कोई नई चीज नहीं है. मैं आपको कोई बहुत नई चीज नहीं बता रहा हूँ. ये अल्लामा इकबाल साहब ने खुद अपनी जिंदगी में किया. हम्म। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी में किया. जितने ग्रेट्स हमारी हिस्ट्री में गुजरे हैं, सबने अपनी जिंदगी में सेल्फ रियलाइजेशन को जो है वो अपनाया. वो अपनी टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ देवर. हमारे पास एक बहुत रीसेंट एग्जांपल जो है वो इमरान खान साहब की है. इमरान हम्म। खान साहब, रिगार्डलेस ऑफ आवर पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इफ यू लुक एट हिज लाइफ, you see that the man achieved impossible. And how did he do it? He realized what he wanted to do. he he realized अगर उनके पास स्किल लैक कर रहे हैं, उन्होंने अपने स्किल्स पे काम किया और उसको अचीव किया. अगर उन्हें सही। 22 साल भी लगे, अगर उन्हें 22 साल भी लगे, तो उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने कहा नहीं ठीक है मैं जाऊंगा. तो सेल्फ रियलाइजेशन इज ऑन टॉप इस पिलर में. राइट। ये सबसे मेन पिलर है जिंदगी का. इसके बगैर सही। बाकी पिलर चारों करीब करीब भी नहीं खड़े होते. यानी मैं सेल्फ रियलाइजेशन की एग्जांपल ये देता हूँ कि जी सेल्फ रियलाइजेशन इज ऑन टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट. उसके बाद 10 माउंट एवरेस्ट और है, फिर सेकंड पिलर है. यानी वो इतना राइट। ऊपर है. सेकंड पिलर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको जो है मैं थोड़ा रिलीजियस वे में बताऊंगा, ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन. उसका ताल्लुक है शुक्रगुजारी से. आई कॉल इट द ग्रैटिट्यूड. एंड द रीजन इज कि जब आप अपने आप को पहचान जाते हैं, जब आपको पता लग जाता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, तो बहुत पॉसिबल है कि आप में कहीं ना कहीं गरूर का एलिमेंट आएगा. आप थोड़े एरोगेंट होंगे. And that बिल्कुल। limits you to grow. When you believe that you are complete, you are actually telling yourself to finish. You're actually telling yourself that this is the end of you. So gratitude tells कि नहीं, आप कुछ नहीं है, आपको बनाने वाला सब कुछ है. आपको शुक्रगुजार होना है. And gratitude also makes one more thing very clear. आपको पता है इस पूरी दुनिया में 8.7 मिलियन स्पीशीज हैं. स्पीशीज मतलब जानदारों की किस्में. 8.7 सही। मिलियन. 8.7 मिलियन इज अ ह्यूज नंबर. और ट्रू। उस 8.7 मिलियन स्पीशीज में सिर्फ एक स्पीशी है ऐसा जिसको आप इंसान कह सकते हैं, वो है होमो सेपियंस, यानी हम. यानी हम सही। इतने लकी हैं कि 8.7 मिलियन में से सिर्फ हम एक नस्ल ऐसे हैं जो इंसान है, जो अशरफुल मखलूकात है. उसके बावजूद हम सुबह उठते हैं और सबसे पहला काम करते हैं कंप्लेन कि इलेक्ट्रिक ने लाइट बंद कर दी, इमरान खान ने महंगाई कर दी, नवाज शरीफ लंदन से वापस नहीं आ रहे,
रोडों के ऊपर कचरा पड़ा हुआ है, हर चीज में कंप्लेन करते हैं। फेसबुक जबकि खोलते दानिश हैं साहब तो सबसे किसी ने बड़ी अगर बात अच्छी यही है पोस्ट कि शेयर जब हम कराई हुई उठते तो हैं, मैं आपकी बात में काट जी रहा हूँ, जी मुझे एक बात याद आई कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब हम सुबह उठ रहे हैं तो शुक्रगुजारी तो हमें इस पे करनी चाहिए कि हम सुबह जाग गए, उठ गए। यू हैव सीन सुबह योर जाग फैमिली, यू गए, हैव सीन योर पेरेंट्स। या वेरी ट्रू। आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं। कितने लोग उस सुबह नहीं उठे, कितने लोग सुबह उठे तो उनके पास खाने को नहीं था, कितने लोग सुबह उठे तो उनके सर पे छत नहीं थी, उनके पास कपड़े नहीं थे पहनने को। यू आर वेरी लकी। आप क्यों भूल जाते हैं? तो ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सही। यू नीड टू मेक श्योर दैट एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ दैट यू टेक इन बिजनेस, इन जॉब, इन पर्सनल लाइफ, यू नीड टू बी वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड वेरी ग्रेटफुल टू फॉर व्हाट यू हैव। मैंने ऐसे ट्रू। लोग भी देखे हैं जो 40,000 रुपए महीना कमाते हैं और वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। वो बहुत खुश है, उनके पास एक मोटर बाइक भी नहीं है, लेकिन वो बहुत खुश है। और मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पॉलिटिशियंस हैं, जिनकी मंथली इनकम का कोई हिसाब नहीं है, और आप उनके साथ जब बैठेंगे वो सिवाय कंप्लेन्स के, एंड दे सिवाय आर नॉट रोने धोने के हैप्पी। और या। कुछ नहीं करेंगे। दे आर टेकिंग tablets for blood pressure, for या। hypertension, for heart disease, for God knows what in very young age. And they are into drugs and they're into smoking and they're into all kinds of bad habits just because of सही। stress. So पैसा पैसा is not the factor of success. The factor of success is gratefulness, gratitude, which takes me to my third most important थर्ड pillar. पिलर। The या। comes very third pillar comes very difficult to many people because अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार ये बोलना बहुत आसान है, and that is perseverance. परसेवेरेंस के मतलब मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ, उस स्टोरी से आपको समझ आएगा। जब मैंने दुबई में कंपनी शुरू की तो एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास कैश खत्म हो गया बिल्कुल, और सही। मेरे पास पेमेंट्स जो थी वो रिसीवेबल्स काफी सारी थी। तो भाई सही। मार्केट में ऐसा होता रहता है ऊपर नीचे। तो हम्म। जो पैसे मुझे घर यानी पाकिस्तान भेजने थे अपने ऑफिस के लिए, सैलरीज के लिए, वो भेज के अब मैं अकेला ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, एंड आई एम चेकिंग माय बैलेंस शीट एंड आई डोंट हैव अ सिंगल डाइम ऑन मी फॉर माय नेक्स्ट मील। मेरे पास लंच के पैसे राइट। नहीं है। ओनर ऑफ द कंपनी सैलरीज पे कर चुके हैं, स्टाफ को पैसे दे चुके हैं, घर पैसे भेज बाकी चुके ढूंढे हैं, पानी। या। अपने अपने पास लंच के पैसे नहीं है। एंड राइट। आई रिमेंबर दोपहर के 12 बज रहे थे, एंड आई वाज लाइक यार आई एम रियली हंग्री, व्हाट शुड आई डू नाउ? एंड आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि अगर 12:30 बजे तक नेक्स्ट पेमेंट नहीं आई तो हम घर जाएंगे और घर में जो कुछ बचा कुचा होगा, लाइक कोई चावल बचे कुचे होंगे, केचप होगी, कुछ भी होगा, यू नो हाउ बैचलर्स लिव, तो मैं उससे कुछ बना बनू के मैं कुछ कर लूंगा गुजारा और देखा जाएगा। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एंड आई मेड दिस प्रॉमिस टू अल्लाह। मैंने कहा देखें अगर आपने, तो फिर मैंने कहा नहीं अगर पैसे आ गए तो क्या करोगे? तो मैंने बोला अच्छा अगर पैसे आ गए तो आई गो ऑन टू जोमेटो विच इज लाइक फूड पैंडा एंड आई ऑर्डर द मोस्ट desirable biryani from there because I love biryani. ऑलराइट। And you won't believe, at 12:30 my phone rang and the message was from the bank that this payment has been made to your account. And I राइट। was like, wonderful, let's go to Zomato, let's order biryani. So perseverance means keep standing in the face of adversity. गम, या। दुख, तकलीफ सबकी जिंदगी का हिस्सा है भाई। आपको नहीं पता कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और एंड सबके दानिश साथ है साहब, दैट मस्ट बी किसी द मोस्ट रिमेम्बरिंग बिरयानी यू एवर हैड। मेमोरेबल। that या। was a great, नॉट that या was मेमोरेबल बिरयानी, सॉरी। या। one of the best biryanis I've ever had, to be honest. because because ये मुझे अब सारी जिंदगी याद रहेगा कि मैं उतने मुश्किल वक्त में मैं खड़ा था, और मतलब आई मेड अ बेट टू माई सेल्फ कि अगर आधे घंटे में पैसे आ जाते हैं तो बिरयानी ऑर्डर करेंगे। एंड आई वॉज रेडी, इफ अगर पैसे नहीं भी आते आई वॉज रेडी टू गो होम एंड ईट वट एवर आई पॉसिबली कुड। तो कहने का मकसद ये है कि वो वक्त आपके ऊपर आएगा जो आप नहीं चाहते। बुरा वक्त आएगा, सब पे आएगा। कभी आपका कोई चाहने वाला चला जाएगा। आई वॉज 20 years old, आई लॉस्ट माई फादर, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। राइट। I opened a company, I had to go to Dubai and I live alone for a year. मेरे दोस्त नहीं थे, मेरा कोई जानने वाला नहीं था, अकेले सही। रहना बहुत मुश्किल था। लेकिन आपको जो चीज चाहिए वो चीज बहुत बड़ी है। आपको जो लाइफ में चाहिए ना वो बहुत बड़ा है, उसके लिए फिर बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस, बहुत बड़ी डिमांड्स भी हैं। आप मांग रहे हो मुझसे 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ की जिंदगी। आप कह रहे हो कि बिजनेसमैन बनना है वो भी सक्सेसफुल। देर आर ओनली 1 or 2% पीपल लाइक दैट ऑन अर्थ। और आप कह रहे हो कि 1 or 2% वाला एफर्ट भी नहीं करोगे, मुश्किलें भी नहीं बर्दाश्त करोगे, तो ऐसे तो नहीं या। चलेगा। तो दैट बिल्कुल इज सही। वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये तकलीफें बर्दाश्त करने के काबिल हो जाते हो तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, जैसे द फोर्थ पिलर ऑफ लाइफ, दैट इज फेथ। फेथ। आपका ईमान किस चीज पर है? क्या आपका ईमान इस चीज पर है कि मैं ये काम करूंगा
तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे, फिर मैं ये काम कर लूंगा, फिर मैं ये गाड़ी ले लूंगा तो मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा, फिर ये मैं कपड़े पहनूंगा तो मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा और मेरी वाह वाह हो जाएगी। यह आपका ईमान इस पर है कि यार क्योंकि मैं ये स्किल जानता हूँ और मैं ये काम में मेहनत करता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे कभी जी पीछे नहीं होने देंगे। तो ये आपका ईमान होना चाहिए अपने से बड़ी किसी चीज के ऊपर। मेरे एक बड़े अच्छे टीचर थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई कि मैं याद रह गई। उन्होंने कहा जब एग्जाम्स देने बैठो, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सुन रहे होंगे उनके लिए बोल रहा हूँ, एग्जाम देने बैठो तो याद रखो कि आप बहुत बड़ी चीज हो हम्म, और आपसे बड़ी चीज सिर्फ एक हस्ती है, वो है रब की, बस। हम्म, और रब के बाद जो सबसे बड़ी हस्ती है ना, वो आप हो। तो जी आप तो एग्जाम में फेल हो ही नहीं सकते। हम्म, तो ये जिस दिन आपने तहैया कर दिया, ईमान आ गया इस चीज पे आपका, तो अब आपको कोई मुसीबत बड़ी नहीं लगेगी। दिस इज द फोर्थ पिलर ऑफ लाइफ। उसके बाद एक और स्टोरी याद आती है मेरे, अपने मरहूम वालिद का जिक्र करूंगा फिर से। उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात सिखाई। मैं 9th क्लास में था, मेरा केमिस्ट्री एग्जाम था। आई वॉज प्रेटी गुड इन स्टडीज, आई वॉज प्रेटी गुड इन केमिस्ट्री। राइट I aced in that exam, I remember, and अच्छा I was crying in my balcony. A ninth class student crying in my balcony because of chemistry exam. My father comes to me midnight का टाइम था, 12 बज रहे थे और सोने का टाइम था। वो मेरे पास है, कहते क्यों रो रहे हो तुम? मैंने कहा मुझे डर लग रहा है कि कल सुबह केमिस्ट्री का एग्जाम है और बड़ा मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा क्यों, तुमने पढ़ाई नहीं की? मैंने कहा नहीं, मैंने पढ़ाई की है, मैंने तो सब कुछ पढ़ दिया। हम्म, क्योंकि जब तुमने पढ़ाई की है और तुमने हम्म, 100% दिया है, then leave the rest to Allah. Now close the book, go to your bed and sleep. हम्म, सुबह भी मैं तुम्हारे हाथ में किताब नहीं देखना चाहता, अब एग्जाम में मुलाकात होगी केमिस्ट्री से, बस। सही बाकी बाकी चीजें आप अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि आपने अपना 100% दे दिया है। राइट और जब मैंने दुबई ऑफिस बंद किया, लोग बड़ा अफसोस कर रहे थे, यार दुबई में आपका ऑफिस बंद हो गया ये। हम्म, मैंने, यार आप लोग मुझे मुबारकबाद नहीं दे रहे, मेरा पाकिस्तान में ऑफिस खुल गया है। हम्म, मतलब मैं अपने पाकिस्तान वाले ऑफिस को जाके ज्वाइन कर रहा हूँ, इसकी मुबारकबाद आप मुझे क्यों नहीं दे रहे? तो दे वर जी जी वेरी शॉक्ड कि यार इसका दुबई में ऑफिस बंद हुआ है, ये बंदा गम ही नहीं कर रहा। मैंने, यार मैं क्यों गम करूं? आई एम गोइंग टुवर्ड्स माय नेक्स्ट स्टेप। हम्म, Because I could not sustain the cost over here, I kept the company and I reduced the cost of the office and I moved back to Pakistan. There's nothing wrong with that. ट्रू Businesses में ऊपर ऊपर नीचे आते हैं, businesses अपनी कॉस्ट ऊपर नीचे करते हैं। हाँ, मैं हारता तब जब मैं बिजनेस बंद कर देता और मैं जॉब करता। जी तब मैं गिव अप करता, तब मैं फेल होता। लेकिन मैं तो फेल नहीं होना, मुझे तो कंपनी रखनी है। सही Which brings me to my fifth and most the last but not the least pillar. अच्छा, जिस तरह मैंने कहा था कि सेल्फ रियलाइजेशन सबसे ऊपर है, उसी तरह मैं ये कहूंगा कि पेशेंस एक ऐसा पिलर है जो इन चारों पिलर्स को बांध के एक बिल्डिंग खड़ी करता है। बिल्कुल सही है पेशेंस पेशेंस इज द फिफ्थ पिलर ऑफ लाइफ। हम्म, आप ये सारी चीजें तब तक नहीं कर सकते जब तक आप में पेशेंस, सब्र ना हो। और सब्र का मकसद ये नहीं है कि मैंने, मुझ पे मुसीबत आई और मैंने 10 गालियां निकाली और 10 कंप्लेंट्स की और 10 बुरा भला बोला और मैं बैठ गया। पेशेंस का मतलब ये है कि नोइंग दैट ओके, मैं अपना एफर्ट कर चुका हूँ, अभी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स आएंगे। जैसे कि वो बड़ा फेमस गाने में, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, वो वाली फील आपको रखनी है। और आपने अपना काम करना है। राइट आपने अपना काम करना है, आपने दाएं बाएं नहीं देखना, आपने सिर्फ अपना काम करना है। आपके पास एक विजन होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये बनना है लाइफ में, और बस बिल्कुल वही दिखना चाहिए आपको। आप अगर दाएं बाएं देखेंगे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे उसने गाड़ी ले ली, इसने ये कर लिया, आप कभी फोकस नहीं कर पाएंगे। मेरा फोकस बहुत बार लूज होता है, लेकिन फिर प्रैक्टिसेस बनाई हुई है हमने कि हम वापस अपने विजन पे आते हैं और दोबारा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो ये 5 पिलर्स हैं राइट जिनकी, जो नॉन सर मेरी रियलाइजेशन है कि राइट एंटरप्रेन्योरशिप में आपके काम आते हैं, बट ये लाइफ में भी आपके काम दानिश साहब आते हैं। मैं यहाँ सेल्फ। पे एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा और वो ये कि जैसे आपने बात की यू टॉक्ड अबाउट कि भाई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप तो ऑब्वियसली अब एक ट्रेंड बड़ा बदल चुका है, चेंज हो रहा है और लोग इसकी तरफ आ भी रहे हैं। और मतलब पिछले सेशंस में भी मैंने देखा कि व्हेन आई स्पोक विद पीपल सो आई रियलाइज कि पीपल आर रियली इंक्लाइन टुवर्ड्स इट नाउ। व्हाई? बिकॉज अवेयरनेस आ रही है, चीजें बदल रही हैं, पीपल आर रियली थिंकिंग टू गो अहेड। एंड मैं एक चाइनीज रिपोर्ट भी पढ़ रहा था तो उसके अंदर इट वॉज ऑल अबाउट द फैक्ट कि हम अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, या जो हम तरबियत भी कर रहे होते हैं उसमें यही सिखा रहे होते हैं, ये बता रहे होते हैं कि दिस इज हाउ यू नीड टू हैव अ जॉब, दिस इज हाउ यू नीड टू डू थिंग्स। बट एज फार एज दैट आर्ट ऑफ बिजनेस इज कंसर्न, एज फार एज दैट मनी इज कंसर्न दैट यू कैन मेक थ्रू बिजनेस, दैट इज व्हाट इज नॉट टॉट, दैट इज व्हाट इज नॉट एम्फेसाइज्ड लाइक दैट, लाइक इट शुड बी एम्फेसाइज्ड। सो मैं आपसे ये कहूंगा कि अच्छा अभी मैंने
ये खुद मेरी ऑब्जर्वेशन है, माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि आई हैव ऑब्जर्व कि पीपल आर नाउ टेकिंग इंटरेस्ट, व्हाई, बिकॉज ऑफ सम, बिकॉज ऑफ सम लीडरशिप, आप कह सकते हैं कुछ लीडर्स की वजह से, कुछ लीडरशिप की वजह से। आपको लेकिन क्या लगता है, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि कैसे हम लोगों को इस तरफ अट्रैक्ट करवा सकते हैं? हाउ कैन वी मेक पीपल रियलाइज कि दे नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स? आई एम नॉट सेइंग कि वो बस इसी में आ जाए और बोले कि नहीं भाई जॉब के अंदर कुछ नहीं रखा, ऐसा नहीं होता। आपका अपना एक माइंड होता है, आप कहाँ फिट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, आया कि आप दैट, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एन एंटरप्रेन्योर देन यू नीड टू बी वेरी क्रिएटिव। आपको क्रिएटिव भी होना पड़ता है, आपको हार्ड वर्किंग के साथ साथ आपकी एक एक एनालिसिस होनी चाहिए, आपकी एक वो अप्रोच, आपकी वो अप्रोच होनी चाहिए। अदरवाइज आप जैसे चल रहे हैं या तो फिर आप उसी को बेहतर करने की कोशिश करें। तो सर ये थॉट प्रोसेस है, ये कैसे बनाया जा सकता है कि लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने का मौका दिया जाए, बनिस्बत इसके कि बस वो जो जिस डगर पे लग गए उसी डगर पे चलते रहें? जी, इसका ज़िक्र मैंने शुरू में किया था कि आपको उनकी दुनिया बड़ी करनी पड़ेगी। उनका जो एक्सपोज़र है वो बड़ा करना पड़ेगा। वो अभी देख सकते हैं एक सर्टेन हद तक। उसका रीज़न ये है कि जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो हम उनको बताते हैं कि जी फलाना बंदा बहुत सक्सेसफुल है, ऐसे बनोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे तो बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, डॉक्टर बनोगे तो बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। We're giving them the wrong vision. Their vision in life is money. Their vision in life is acquiring a certain car, certain property. खाला की बेटी से शादी करनी है और दोस्तों से ज्यादा पैसे कमाने हैं, बड़े घर में जाना है. Their vision is completely deluded. And I blame this. मेरी इसमें एक वीडियो भी है जिसका नाम है नवाब के बच्चे. मैं इसका सारा कसूर डालता हूँ नवाब के ऊपर. नवाब कौन है? जिन्होंने हमें रेस किया, जिन्होंने हमारी तरबियत की. मतलब मैं खुद भी इसी तरह बड़ा किया गया था. मुझे मेरी तरबियत भी इसी तरह हुई थी. वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कुछ टीचर्स और कुछ तजर्बे ऐसे मिले मेरे फादर के जाने के बाद जिन्होंने मेरा माइंड चेंज किया. हमें वो विजन बचपन से ही, और अगर खास तौर पे हमारी यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों में, हमें वो विजन चेंज करना होगा. हमें उनको डिफरेंट स्किल सेट सिखाने होंगे ऑफ हाउ टू एनालाइज सिचुएशंस. क्योंकि देखें, बिजनेस में हो या जॉब हो, प्रॉब्लम्स आती हैं. ठीक है, अक्सर हर्डल्स आते हैं. उनको सॉल्व कैसे करना है, जैसे आपने कहा कि आपको इनोवेटिव होना जरूरी होता है हार्ड वर्किंग के साथ. उनको सॉल्व कैसे करना है, उनको अप्रोच कैसे करना है, वो सिखाना बहुत जरूरी है. उसके लिए चाहिए होते हैं एनालिटिकल स्किल्स, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, जो हमारी यूनिवर्सिटीज में सॉरी टू से नहीं सिखाए जाते. इवन ऑन्टरप्रेन्योरशिप के कोर्स में नहीं सिखाया जाता. मैं एक बार ऑन्टरप्रेन्योरशिप के कोर्स की सिलेबस पढ़ रहा था किसी यूनिवर्सिटी की. उसमें ग्रोथ फंडिंग, सीड फंडिंग और एक कंपनी कैसे रजिस्टर करवाई जाती है, इस तरह के सब्जेक्ट्स थे. लेकिन उसमें ये बेसिक्स नहीं थी. जैसे आपने कहा कि ये चीजें नहीं बताई जाती कि ऑब्जर्वेशन किस तरह करनी है सिचुएशन की. जी, अब कोविड आया हुआ है, कोरोना वायरस आया हुआ है. इसने जहां 10 बिजनेसेस बंद किए हैं, 10 नई अपॉर्चुनिटीज भी दी हैं. बिल्कुल इसने ऐसा है। होम डिलीवरी के सिस्टम को एक नई ग्रोथ दी है. इसने ई कॉमर्स को एक पाकिस्तान में नई ग्रोथ दी है. अब इसके बिल्कुल, अंदर नए चैलेंजेस, इसी हिसाब से नए इट हैज चैलेंजेस रियली भी आए गॉटन अ हैं. बूम, अब आ गया है बिल्कुल। हाँ, तो वो अगर एनालिटिकल माइंड्स होंगे तो वो देखेंगे कि यार हमारे लिए इसमें कहाँ अपॉर्चुनिटी लाई कर रही है और हम कहाँ वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं. विच ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड पॉइंट. हम ये, जहां हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि जी पैसे के लिए आपने काम करना है, आपने पैसे के लिए सब कुछ करना है, वहां हम उन्हें ये भी भुलवा देते हैं कि आप वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेंगे. देखिए, क्लाइंट को जब आप वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए काम करेंगे ना, तो पैसे जी, ऑटोमेटिकली आएंगे. बिल्कुल। अगर मैं एक अच्छा वेब डेवलपर हूं, मेरी कंपनी एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाती है, क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली मेरे पास आएंगे. अगर मैं काम बुरा करता हूं, अगर मेरा काम की वैल्यू जो है वो नहीं है जितने पैसे मैं मांग रहा हूं, तो मैं शायद एक क्लाइंट, दो क्लाइंट काट लूंगा, लेकिन उसके बाद फिर लोग मेरे पास दोबारा नहीं आएंगे. मेरे पास मुझसे जो क्लाइंट्स 2012 में काम करवाते थे एज ए फ्रीलांसर, वो आज तक मेरी कंपनी को काम आउटसोर्स करते हैं. द रीजन इज बिकॉज आई प्रोवाइडेड वैल्यू टू देम. या मेरी पेमेंट लेट नहीं होती आज तक उनकी तरफ से. मेरी मेरी हर कम्युनिकेशन ऑन टाइम होती है उन लोगों के साथ. द ओनली रीजन इज बिकॉज आई प्रोवाइड वैल्यू. आई ओन देयर कंपनी, आई ओन देयर प्रॉब्लम. अगर कोई मसला रात को 2 बजे भी आता है एंड दे कॉल मी एंड दे टेल मी कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आई टेल देम ओके, विल डू समथिंग अबाउट इट. मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे सुबह कॉल करें. सो ये जो पर्सनलाइजेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ प्रोडक्ट्स है, ये बहुत जरूरी है. और ये तब आती है जब आप वैल्यू करना सिखाएं कि आपने दूसरे को वैल्यू देनी है. अब राइट। हमारे यहाँ तो वैल्यू का ये हाल है कि हम किसी दोस्त की या किसी रैंडम बंदे की किसी फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट देखते हैं तो हम तनकीद करना शुरू कर देते हैं. हम उससे अग्री क्रिटिसिज्म नहीं इज करते. ऑलवेज देयर। या हम हर चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, हम उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते. यार अगर उसने अटेम्प्ट की है कॉन्फिडेंस के साथ, वो अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो. आपके कौन से पैसे लग जाने. जी, वो बंदा कितना कॉन्फिडेंट हो जाएगा, उसकी लाइफ में आपकी तरफ से कितनी वैल्यू ऐड हो जाएगी, आप ये तो देखें. एग्जैक्टली। और ये मुझे बड़ा हैरानी होती है कि मुझे ये बड़ी नेचुरल चीज लगती है
क्योंकि बच्चों में ये चीज होती है, अगर आप देखें जो हम इंसान पैदा होते हैं तो हमें पैदाइशी होती है चीज एक दूसरे को वैल्यू प्रोवाइड करना। ठीक है ना, बच्चों को जब आप चीजें देते हो तो वो शेयर करने में हिचकिचाते नहीं है, वो अपनी राइट खिलौने भी शेयर करते हैं, वो इंटरेस्ट लेके क्यूरियोसिटी के साथ शेयर करते हैं। आप कहते हो राइट कि नहीं जी ये बुरा है, मेरा मेरा वाला अच्छा है, ये इनके पास सब कुछ बुरा है, आप क्रिटिसाइज करते हैं। सही बात तो टू थिंग्स दैट वी नीड टू टीच आवर स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग वैल्यू टू देयर कस्टमर्स, प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द मार्केट। Second thing is being very observational and analytical to every situation. या Problems, hurdles are part of life, are part राइट of business, are part of jobs. You राइट अच्छा have to be very tactical. हम्म। दानिश साहब एक सवाल, इट इज गोइंग टू बी वेरी ऑफ द टॉपिक बाय द वे दैट आई एम आस्किंग यू नाउ। Yeah, यू डू मेक वीडियोस टू, मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी, लाइफ इज अ रेस, एंड दूसरी एक थी वो सस्ता नशा, समथिंग लाइक दैट। सो यू नो yeah, ये जो आप कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, ये दिस साइड ऑफ यू, हाउ इट ऑल स्टार्टेड आउट, मतलब आप इस तरफ कैसे आ गए कि आप वीडियोस भी बनाते हैं, मतलब अवेयरनेस भी दे रहे होते हैं? तो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन दैट yeah. जस्ट क्लिक इनटू माय माइंड, मैंने कहा पूछूं आपसे। So, मेरा एक मोटो है लाइफ में, हम्म। जो मेरे YouTube चैनल पे भी लिखा हुआ है, वन लाइफ जीरो रिग्रेट्स। बाइनरी, हर ऑलराइट। चीज बाइनरी है, हर चीज वन और जीरो में है। और जो जी। जिंदगी है वो उसका वन और जीरो ये है, एक जिंदगी है, रिग्रेट्स जीरो है। तो उसका मकसद, उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, वन लाइफ जीरो रिग्रेट्स। उसमें मैंने बताया था कि वीडियोस कैसे स्टार्ट हुई। एक बार मैं 4 प्रपोजल्स मैंने दिए हुए थे, मेरी कंपनी ने दिए हुए थे दुबई में, अच्छा। और वो एक ही दिन में चारों पे रिजेक्शन आ गई, एक ही दिन में। ऑलराइट। अब अच्छा। ये अब ये बहुत कॉमन सी चीज है कि आपके प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट भी होते हैं, अप्रूव भी होते हैं। हम्म। और ये जब हुआ तो मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ कि यार मैं अकेला भी था, और मुझे डर लग रहा था कि यार ये व्हाट द हेल इज हैपनिंग, मतलब my राइट। company is doing so good and I'm getting rejected by clients for such small projects. And हम्म। I felt very sad by that and I started crying. और जब मैं हम्म। रोने लगा तो वो जो दिल का गुबार था ना वो बाहर आ गया, एंड आई वाज लाइक यार मैं किस बात पे रो रहा हूँ। मैंने इतना कुछ जो सीखा है, इतना कुछ इस जर्नी में मैं सीखा हूँ, मेरे पास तो बहुत कुछ है अभी भी सही है। इम्प्लीमेंट करने को, क्योंकि मैं इतना कुछ सीख चुका हूँ अपनी गलतियों से। तो अब अगर मैं अटेम्प्ट करूंगा तो वो ज्यादा बेटर होगा। उस हम्म। वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो मैंने सीखा है ये मुझे दूसरों को भी बताना चाहिए, क्योंकि दूसरे हो सकता है इस सिचुएशन से गुजरे जिनसे मैं गुजरा हूं, और वो नेगेटिव हो जाए, वो इसको इस तरह पॉजिटिवली ना लें जिस तरह मैंने लिया। राइट। तो इसी वजह से मैंने देन यू स्टार्टेड पहली डूइंग वीडियो दिस, बनाई। राइट? पहली मैंने वीडियो बनाई, उसके बाद दूसरी, एंड नाउ दे आर मोर देन 50 नाउ ऑन डिफरेंट राइट। कॉन्सेप्ट्स। आई एम गोइंग टू वॉच ऑल ऑफ देम नाउ आफ्टर स्पीकिंग विद यू। I'm ये working on another one that is called जो दिखता है वो बिकता है, which अच्छा। is sort of a short film, क्योंकि उसमें राइट। मैं कैरेक्टर भी प्ले कर रहा हूँ। एंड उसमें मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ कि मटीरियलिस्टिकनेस इज रूइनिंग आवर लाइफ। जी। हम तबाह हो रहे हैं जो है वो मादी पसंदी की वजह से, चीज़ों की मोहब्बत की वजह से। चाहे सोशल मीडिया को कसूरवार ठहराएं या ट्रेडिशनल मीडिया को, लेकिन दे आर जस्ट ruining our lives because of this race, and I want to go against that race full on. तो राइट। वो उस वीडियो में, श्योर सर। दानिश साहब, एनी लास्ट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू द पीपल आउट देयर हु हैव बीन लिसनिंग टू यू, क्या कहना चाहेंगे? yeah, one life, zero regrets. Life is binary, and you only have one chance at it. और अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो ये याद रखें कि आप मर जाएंगे एक दिन। तो इससे अच्छी मोटिवेशन मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आपको ये याद रखना वेरी ट्रू। चाहिए कि यार एक दिन ये जर्नी खत्म हो जाएगी। There is going to be an end to this. तो you don't have enough time. मैं अक्सर लोगों से 2 सवाल बोलता हूँ, 2 सवाल याद रखें। एक तो ये कि वो एक खुद से ये पूछें क्या आप दोबारा जिंदा होंगे, और वो खुद से ये भी पूछें कि क्या उनको पता है कि वो कब जाएंगे इस दुनिया से। तो इन दोनों सवालों का जवाब जो है यही है कि उनको नहीं पता कि वो कब जाएंगे, और वो दोबारा जिंदा नहीं होंगे। तो जब आपको वेरी ट्रू। पता ही नहीं है कि आपके पास कितना टाइम बाकी है, एंड यू ओनली हैव वन चांस एट इट, देन बेटर डू व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, एंड स्टॉप लिविंग द लाइफ फॉर योर पेरेंट्स और फॉर योर फ्रेंड्स और फॉर समबडी एल्स। आप उन सबको समझाएं कि भाई आप ये करना चाहते हैं जिंदगी में, और वो करें फिर। ट्रू। दैट्स द टेकन ओनली। सर। राइट। मैं भी आखिर में बस यही कहूंगा आप तमाम लोगों से कि जो आप जो भी देख रहे हैं शो को और सुन रहे हैं बात, कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे दानिश साहब ने कहा कि अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कोशिश यही करनी है कि आप जो करना चाहते हैं, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। और दूसरी बात मैं उसके अंदर ऐड ये भी करूंगा कि
do what makes you happy and try to understand or learn that art. उस आर्ट को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि लर्निंग जो होती जी है ना वो कहीं रुकनी नहीं चाहिए। अगर आपका आज का दिन बिल्कुल। पिछले दिन से बेहतर नहीं है ना तो फिर आप तबाह हैं, मुझ समेत। तो जी बहुत बिल्कुल। जरूरी है कि हर दिन कुछ ना कुछ सीखिए और ऐसे आगे बढ़िए, It's a क्योंकि जिस दिन process. आपने लर्निंग, या Actually, इट्स अ it's प्रोसेस। a process, वेरी and ट्रू। you have to be in love with the process. वेरी Don't do ट्रू। it for car. Don't do it for expensive watches. Don't do it for any particular material. Do it जी, for the process. उस सफर के लिए करें जो वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी है। बाकी बिल्कुल चीजों का क्या है, चीजें अपने अपने टाइम पे खुद ही आ जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। दानिश साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात प्लेजर इज करके। ऑल इट माइन। वाज वेरी इंसाइटफुल मुझे भी बहुत कन्वर्सेशन। खुशी हुई। आई यप। रियली विश यू द बेस्ट ऑफ लक ऑन बिहाफ ऑफ इंडस यूनिवर्सिटी। वी आर रियली थैंकफुल टू यू। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो एक नई वीडियो आ रही है, मैं जरूर देखूंगा। लोगों से भी ये कहूंगा कि आपको फॉलो करें, आपकी वीडियोस को देखें, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू टेल ओवर देयर एंड दोस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यप। थैंक यू सो No, मच सर। I'm really glad. Thank you so much, and I hope थैंक यू। that all the ones who have listened to this video and that will listen to this video will learn something and have something positive in their life. Thank you so much थैंक for यू having जी। me. अल्लाह Thank हाफिज। you, Ji. Allah Hafiz.